distinction. Say with me, God makes a distinction. प्रभु एक अलगाव करता है It is called God's no-fly zone. और उसे कहते हैं बिना मक्खी का प्रभु का प्रदेश। God declared, I will set apart the land of Goshen. और मैं एक अलग जगह बनूंगा, उसके गोशेन कहते हैं। God showed Pharaoh और प्रभु ने फिरौन को दिखाया that his people are different. कि उसके लोग अलग हैं। Hey, Egyptian, you are different. My people are different. मिस्री तुम लोग अलग हो और मेरे लोग अलग हैं। The days are coming prophetic. और नबूवत में वो दिन आ रहे Malachi हैं। chapter 3:18. मलाकी का 3:18। Then you shall again discern. Say with me. Then you shall again. Then you shall again. You shall again. Means you never discerned. You shall again You shall again. discern between the righteous and the wicked. तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, Between one who serves God and one who does not serve Him. अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। जो सेवा नहीं करता है उसका बात ज्यादा मानते हैं लोग। Are you there with me? The one who doesn't serve God, one who doesn't pray, one who doesn't know the word of God, one who doesn't even fear God, उसका बात बहुत लोग सुन के backslide हो जाता है। But God is bringing once again. और प्रभु वापस एक बार ला रहा है। Then you shall again discern. और फिर तुम भेद जानोगे। Church is moving into new dimension, new season. कलीसिया एक नए ऋतु में एक नए मौके पर चल रहा Every है। believer here will move into new dimension who is hearing my words. हर एक विश्वासी जो मेरा वचन सुन रहा है एक अलग स्तर पर चलेगा। You will again move into different dimension. अलग ही स्तर पर आप चलोगे। You will learn to discern between one who serves God and one who is wicked. और दोनों का भेद आप जान लोगे कि जो सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता है। Hallelujah. Amen. That means God still makes a distinction. It is never ended in Egypt. It is continuing. मिस्र में ही खत्म नहीं हो गया, अभी भी प्रभु वो भेद करता है। Between those who belong to Him, those who doesn't belong to Him. जो उसके हैं और जो उसके नहीं है, उन दोनों के बीच में भेद करता है। I speak all these things in the leadership, but ये सारी बातें मैं लीडरशिप में बात करता हूँ। hallelujah. हालेलुया। But I'm talking to you. पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। And God loves you. मतलब प्रभु आपसे प्रेम करता है, God wants to teach you something. इसलिए कि प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। You know, Goshen, गोशेन, where God makes a distinction. जहाँ प्रभु भेद करता है। Goshen गोशेन was a place ऐसी जगह है of divine protection. जो दैविक सुरक्षा दे रहा है। The flies represented troubles. और मक्खियों का मतलब है समस्याएं। The fly represented destructions. तो मक्खियों का मतलब है विनाश। The flies represented judgments. तो मक्खियों का मतलब है न्याय। But we are in the same environment. पर हम तो उसी वातावरण में है। The Israelites are in the same environment. इजरायली वही वातावरण में है। Hallelujah. The Makki surrounded the land of Egypt और alone. पूरे मिस्र देश में पूरी मक्खियां भर गई है। Even the Goshen was surrounded by the Makkis. और गोशन भी मक्खियों से घिरा हुआ है। But when they were flying, पर जब वो उड़ रहे थे, ऊपर से वो क्या बोलते हैं, what is it called, ड्रोन से देखा, उनका ड्रोन आई है, ड्रोन से देखा, और उनके अपने ड्रोन वाली आंखों से देख रहे हैं, वाइप करके देख रहा है, और ऐसे आंखें से खुजला के भी on देख the रहे हैं। Goshen in the big blood में लिखा था God's no fly zone, you will be, और वहां लाल प्रभु के लहू में लिखा था कि ये उड़ने का क्षेत्र नहीं है, और वो वहां से निकल गए। I stay right under the blood, the devil can do me no harm. I Amen. stay right under the blood, the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. Are there? क्या आप यहाँ है? Hallelujah. हालेलुया। God told me, प्रभु ने मुझसे कहा, my son, मेरे बेटे, you are in God's no-fly zone. तो तू प्रभु के बिना उड़ने वाले क्षेत्र में है। Hallelujah. हालेलुया। कोई भी मिसाइल आता है, कोई भी अगर मिसाइल आ जाए, bitterness missile, कड़वाहट की मिसाइल, Hallelujah. Enemies missile, शत्रु की मिसाइल, backbiting missiles, चुगली करने वाले की मिसाइल, past missiles, भूतकाल की मिसाइल, ये वो missiles, ये और वो मिसाइल, it flies. वो उड़ेगी। The moment it want to fall on me,
और जब जिस क्षण वो मेरे ऊपर गिरना चाहे they see God's no-fly zone. और वो Sorry. देखेंगे कि यहाँ न उड़ने का क्षेत्र है, I'm prophesying you under the anointing. तो अभिषेक में मैं नबूवत कर रहा हूँ, Don't treat me casually. तो मुझे ऐसे ही हल्के में न लें। Watch and wait. और आप देखें, इंतजार करें और I देखें। have seen in the past what God has done. और I मैंने will यह see it in भूतकाल the में future. देखा है प्रभु ने क्या किया है। The people who talk against me, जो लोग मेरे विरुद्ध बातें कर रहे I हैं always say the torment go back to their lives. और सताव उनके जीवन में वापस लौट जाएगा। You are a child of God. आप प्रभु की संतान You are हो, anointed by God. प्रभु के द्वारा अभिषिक्त You're हो, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए You हो। preach the gospel. You don't have time to backbite. और हमें प्रभु का वचन प्रचार करना है, हमारे पास समय नहीं कि हम किसी की चुगली करें। Hallelujah. हालेलुया। You need to segregate yourself today to see the power of God. तो आपको अपने आप को अलग करना होगा ताकि आप प्रभु की सामर्थ्य को देखें। Hallelujah. हालेलुया। एक माइक पकड़ के दूसरे के सामने टेस्टिमनी बोलने का योग्यता नहीं रहता है, दूसरे के बारे में गलत गंदा गंदा बात करता है। You want to listen, you want to be part of those people. क्या आप उस लोगों के भाग बनना चाहते हो? Church has to be purified. कलीसिया को शुद्ध होना जरूरी Remember है। who baptized you. याद रखो आपको किसने बपतिस्मा दिया, Remember who gave you the word. तो आपको किसने वचन दिया, याद रखो। Remember the good things the man of God has done for you. याद रखो परमेश्वर के दास ने आपके लिए क्या भली बातें की The है। same environment, वही वातावरण, but God's protection पर प्रभु का जो सुरक्षा rested on everyone, हर एक के ऊपर बनी रही, on one who served the living God. जो प्रभु की सेवा करता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, Psalms 91, the Bible says 7. और भजन संहिता 91:7 बाइबल कहता है, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. और 1000 तेरे 91:7. दाएं और 10,000 तेरे बाएं घिरे फिर भी Hallelujah. कोई तेरे पास न आएगा। Say with me, 1,000 कहे 1000 and 10,000 और 10,000 may fall at my right hand, मेरे दाहिनी ओर गिरे, but it shall परंतु वह not come near me. मेरे पास न आएगा। आमेन। Somebody say amen. आमेन। हालेलुया। ऐसा लगता है आपके पीछे वो कीड़ा लगा है। अरे बोलिए ना, hey, where are you? You carry the fire of God. और आप प्रभु की अग्नि में चल You रहे हैं, have the Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है। Protection is not the absence of danger. और सुरक्षा का मतलब नहीं कि खतरा नहीं है वहां पर, It is the presence of God in the midst of the danger. और प्रभु की उपस्थिति भी उस खतरे में। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। हालेलुया। In the COVID, कोविड में there was danger all around us. हर एक जगह पर खतरा था। Me and my wife, we filled all the full biscuits, water, cool drinks, food, rain, everything. और मैं और मेरी पत्नी ने पूरा घर भर दिया था खाने से, बिस्किट से, कोल्ड ड्रिंक्स, कार भर दिया था खाने से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And there was a danger zone. तो वहां एक डेंजर जोन था And we are in the danger zone. और हम डेंजर जोन में थे। Hallelujah. हालेलुया। But we have the presence of God. पर हमारे पास प्रभु की उपस्थिति थी। COVID could not touch us. कोविड हमें हाथ नहीं लगा पाया। Let me tell you word of knowledge. और एक ज्ञान का शब्द कहता हूँ, Severe than the COVID is on the way. तो कोविड से भी जो सीवियर है, बड़ा है, वो आ रहा है। If you have the presence of God and if you stay under God's no-fly zone, you will be protected. अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहे और प्रभु के न उड़ने वाले क्षेत्र में रहे तो आपकी सुरक्षा होगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you there? क्या आप यहाँ है? Goshen means गोशेन का मतलब है God makes a distinction between the wicked and the righteous. प्रभु धर्म और दुष्टता के बीच में भेद करता है। Goshen means गोशेन का मतलब है, Goshen means it's a place of divine protection. गोशेन का मतलब ऐसी जगह जो दैविक सुरक्षा से भरी हुई है। Goshen means गोशेन का मतलब it है is a place of God's presence. प्रभु की उपस्थिति की जगह। Say with me, God's presence. प्रभु की उपस्थिति। The Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, go and tell that fellow. जा और उस व्यक्ति से कह। फरो का मतलब क्या मालूम है? फिरौन का मतलब क्या है? Frog.
मेढक You know, have you seen frog calling his name? Fro, 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 fro. क्या मेढक को उसका नाम पुकारते हुए सुना है? फ्रो फ्रो करके। Pharaoh. फिरोन, Oh, Pharaoh. How are ओ you, Pharaoh? फिरोन, हालेलुया। Pharaoh, what happened in the church? फिरोन क्या हुआ कलीसिया में? And the frog says, और वो मेढक कहता है, God said प्रभु ने कहा that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. और मैं ऐसा प्रभु हूँ जो इस पृथ्वी पर है। Hallelujah. हालेलुया। The greatest blessing और सबसे महान आशीष was not the absence of the flies, वो मक्खियों का न होना नहीं है, but the presence of God. पर प्रभु की उपस्थिति है। Hallelujah. हालेलुया। One fellow told me, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, oh pastor, अरे पास्टर, church खाली हो गया ना? कलीसिया खाली हो गया ना? I told him, मैंने उससे कहा, presence of God नहीं छोड़ा है. प्रभु की उपस्थिति गायब नहीं हुई है। I rebuke that spirit which spoke to me and I reverse it to their house and family in Jesus' name. और मैं डांटता हूँ उस आत्मा को जिसने ऐसी बात कही और उसके परिवार के ऊपर वो घोषित Whether करता you हूँ। like it or whether you don't like, anybody talks against the house of God, I don't spare. और जो कोई भी प्रभु के घर के बारे में You बोल रहे हैं, see, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। The pockets will be empty. तो उनके जेब खाली हो जाएंगे Bankruptcy will happen. और उनको Bankruptcy will happen. नुकसान हो जाएगा। You know why? क्यों? Spoke against the house of God. क्योंकि प्रभु के भवन के विरोध में बात की है। Hallelujah. The greatest blessings और सबसे बड़ी was आशीष not the absence of the flies. और मक्खियों का न होना नहीं है, It is the absence of the presence of God. और वो प्रभु की उपस्थिति न होना है। Hallelujah. हालेलुया। So what we carry is the presence of God. तो not हम the क्या words of लेकर the people. चलते हैं? प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Amen. क्या एक आमेन सुन सकता हूँ? अरे बोलिए ना. आमेन, I हालेलुया। carry the presence of God. Say with me, I carry the presence of God. और कहो, मैं प्रभु की उपस्थिति को I लिए carry the चलता presence of हूँ। God. मैं प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता हूँ, मैं प्रभु का उपस्थिति लेके चलता हूँ, लोगों को नहीं. लोगों को नहीं। Amen. आमेन। लोगों को लेके जिस दिन तुम चलेगा उस दिन तुम्हारा खत्म स्टोरी. हालेलुया। Because put Jeremiah 17 verse 5. Cursed is the man who trusts in man, but blessed is the man who trusts in God. यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, कि जिसका मन यहोवा I से told him, भटक जाता है। my trust is not in you, my friend. It is व्यक्ति not से in मैंने you. कहा कि मेरा भरोसा तुझ पे नहीं Not in है, your finances. आपके पैसों पर भी नहीं Not in your है, offerings. आपके दान पर भी नहीं है। God started this. God will take care of it. प्रभु ने शुरू किया है, Come on, प्रभु somebody. ही इसे संभालेगा। अरे आमेन, बोलिए ना आमेन बोलिए. आमेन। If you are not saying amen, you are part of it or what? तो अगर आप आमेन नहीं बोल रहे, क्या आप उसके भाग हो क्या? Hallelujah. हालेलुया। People so easily forget what the man of God has done. और बहुत आसानी से लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर के दास ने क्या किया Let me है। remind them, God has not forgotten them. तो उसको याद दिलाने दो कि प्रभु भूला नहीं है। Oh, pastor, that's Old Testament. प्रभु वो तो पुराना नियम है, You are judgmental. तो आप तो बहुत न्याय करने वाले हो। जो भी कोलेशन पढ़ रहे, कोरिन्थियंस पढ़ रहे, उनसे पूछो, पता चलेगा. हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट में सिवियर देन दिस. नए करार में तो उससे भी खतरनाक Means न्याय। hand over them to the devil. तो उनको तो शैतान को समर्पित कर दिया, God strike them. और प्रभु तो उन्हें हमला कर उनके ऊपर। Hallelujah. That's the word they use in the New तो Testament. ऐसा वचन इस्तेमाल किया है नए करार में। Darkness loses power when God dwells in me. अगर प्रभु मेरे अंदर निवास करता है तो Listen. अंधकार का सामर्थ्य निकल जाता है। Where God dwells, जहाँ प्रभु रहता है, darkness loses power. तो अंधकार अपनी शक्ति गंवा देता है। Where God dwells, जहाँ प्रभु रहता है, fear loses control. और डर अपना कब्जा छोड़ देता है। Where God dwells, जहाँ प्रभु रहता है, the enemy loses access. शत्रु उसका प्रवेश निकार दिया जाता Where है। God dwells, जहाँ प्रभु रहता है, confusion gives a way to peace. और हर गड़बड़ी अब शांति के लिए रास्ता लिखती है। Hallelujah. हालेलुया। अशांति के लिए नहीं, शांति के लिए रास्ता देता है, क्योंकि God's presence dwells in us. क्योंकि प्रभु की शांति हमारे अंदर निवास करती है। Hallelujah. आमेन। The presence of God प्रभु की उपस्थिति is the true no-fly zone. और वो सही न उड़ने वाला क्षेत्र है। Hallelujah. हालेलुया। ऐसे मक्खी उड़ती हुई आएगी।
एक मिसाइल, एक मिसाइल ऐसे दागेंगे। can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन Now सकता let हूँ? me tell you, the enemy cannot operate where God who has drawn the boundary. और शत्रु वहां हमला नहीं कर सकता जहां की सरहदें प्रभु ने बनाई है। Hallelujah. The enemy cannot, say with me, the enemy cannot operate शत्रु काम नहीं कर सकता where God has drawn the boundary. जहां प्रभु ने सीमा डाली हुई है। Hallelujah. हालेलुया। The flies reach Egypt, और मक्खियां मिस्र देश में आई, but they want to go to Goshen. वो गोशेन जाना चाहती है They stopped there. और वहां पर रुक गई। Why? क्यों? बाप रे बाप. God's no fly zone. और प्रभु का न उड़ने वाला क्षेत्र। फालतू में चिंदी का के जी रहा था, उधर जाके क्यों मरूं? There is a spiritual principle here. तो यहाँ एक आत्मिक सिद्धांत है। When God places a boundary around you, जब आपके इर्द गिर्द प्रभु सीमा डालता है when God places a boundary around His people, और प्रभु के लोगों के इर्द गिर्द प्रभु सीमा डालता है, you know, the enemy cannot cross without permissions. और परवानगी के बिना, परमिशन के बिना वो शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। Hallelujah. Are you there? हालेलुया। आप हो यहाँ पे? When will the enemy enter your boundary? और कब शत्रु आपके सीमा में प्रवेश करेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. जब आप बोलोगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। Hallelujah. हालेलुया। हाँ? आज अभिषेक ज्यादा है, सुबह से प्रार्थना करो. हालेलुया। Amen. आमेन। Even you give the permission. और जब आप परमिशन देते हो, You know, God has placed the boundaries around His children. तो प्रभु ने उसके बच्चों के इर्द गिर्द सीमा डाली But the है। enemy cannot cross the boundary without your permission. तो शत्रु आपकी परमिशन के बिना वो सीमा क्रॉस नहीं कर सकता। आ जाओ ना, खाना खाएगा ना साथ में. Come will have dinner क्या with. कर रहे हैं आज शाम को? What you are going to do today evening? चलना जाएगा. Come will go. वो चलना जाएगा किला के तकलीफ हो गया. Amen. पाइल्स आ गया. किला के पाइल्स हो गया. The woman left the church. She told me in the last. और जो स्त्री कलीसिया छोड़ के गई उसने मेरे को अंत में कहा, We are weak because of eating and it all spoiled. और हम खाने के कारण सब खराब हो गया हमारे यहाँ पे। ला के खिलाते थे, हमको मार डाला. हालेलुया। I asked them, who invited? मैंने कहा किसने बुलाया था? Who gave the permission? किसने परमिशन दी? You gave the permission. आपने परमिशन दी। खिलाओ मत और खाना भी मत. It's a lesson. Don't eat and don't invite also. Read Job 1:10 please. अय्यूब 1:10 में कहते हैं, Have you not made an edge around him, around his household, and around all that he has on every side? See, this is so powerful. क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? You know who is admitting this? और ये कौन बोल रहा है? आपको मालूम है कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? शैतान। अरे बोलिए ना, कौन बोल रहा है? शैतान। इतना गंभीर क्यों नहीं? इतना दिन देखा नहीं तो बात इतना करते. हाँ? Who said it? Devil said it or devil said it? My goodness. शैतान को इतना अकल कैसा आ गया? Devil जब भी got तुम्हारा wisdom. बाउंड्री बंद रहता है ना, तभी उसको अकल आता है. जब आपकी सीमा बंद रही रहती है ना, तभी उसको अकल आती है। Satan himself admitted that God had built a protective edge around Job. और शैतान ने खुद कबूल किया कि प्रभु ने एक बाड़ा बांधा है अय्यूब के इर्द गिर्द। Hallelujah. Now every devil in the city, और हर एक शैतान इस शहर में, every devil in this country, हर एक शैतान इस देश में, every devil in the world हर एक शैतान इस संसार will में tell of me and you, God has put the wall of fire around this man, around this church, around his people, and I admit that I can touch them without their permission. और वो घोषित करेगा कि ये व्यक्ति के इर्द गिर्द प्रभु ने अग्नि के एक सुरक्षा चक्र बाड़ा बांधा है और मैं उसे छू नहीं सकता। छू भी नहीं सकता हूँ, चुम्बा भी नहीं सकता हूँ. Hallelujah. Amen. The devil will admit, the days are coming, the devil will tell आने you. वाले दिन ऐसे हैं कि शैतान खुद कबूल आप करेगा। रोड पे जाएगा, डेविल बोलेगा सर ये तो परमेश्वर का दास है.
आप रोड पर जाओगे और शैतान कहेगा ये तो परमेश्वर का दास है। Can I hear an amen? आमेन। Read John 14, 15, 16. 17th you will come to know you have to only talk about God. तो यूहन्ना 14, 15, 16 पढ़ो और 17 में It's a जब पढ़ोगे training तो for you. प्रभु कहेगा अपने बारे में। Hallelujah. Believers are called to live a spiritual Goshen. और एक विश्वासी लोगों को एक आत्मिक गोशेन में रहना जरूरी है। Today where this Goshen is found? तो आज ये गोशेन कहाँ पर है? Our Goshen is found in Christ. तो हमारा गोशेन मसीह में है। Our Goshen is found in His presence. तो हमारा गोशेन उसकी उपस्थिति में है। Our Goshen is found in His blood. तो उसके लहू में हमारा गोशेन है। Our Goshen is found in His word. हमारा गोशेन उसके वचन में है। And our Goshen is found in His covenant. तो हमारा गोशेन उसकी वाचा में है। Hallelujah. हालेलुया। If you stay in His word, अगर आप उसके वचन में बने if you रहो, stay in Christ, आप मसीह में बने रहो, if you stay in His presence, उसकी उपस्थिति में बने if you रहो, stay under His blood, उसके लहू में बने रहो, if you stay under His covenant, उसके वाचा में बने रहो, the devil will tell you, और शैतान आपसे कहेगा I cannot touch you nor fly over you because it is God's no-fly zone. मैं तुझे छू नहीं सकता या तेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रभु का न उड़ने वाला क्षेत्र है।